11 ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਟਰਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਲਾਸ 11th ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 3, ਯੂਨਿਟ 4, ਯੂਨਿਟ 5, ਈਵਨ +2 ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਮਾਈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਇਨੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋ, ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਵੈਕਟਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 11th ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ PSCP ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਮੇਨ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਕੇਲਰ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ। ਸਰ ਜੀ ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, पर डायरेक्शन ना होवे, डायरेक्शन ना होवे। फॉर एग्जांपल सर जी डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सुनते हैं ना आप, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है कि इन्हां दोनों कोल सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। सर जी सब तो पहले आप समझांगे मैग्नीट्यूड की हुंदा है। किसी मान लो तुसीं किसी रेड़ी ते गए, सब्जी रेड़ी ते, उत्थे जाके तुसीं 2 किलो टमाटर लेते, 2 किलो टमाटर लेते, तो उत्थे तुसी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल चल रही है, यानी कि 2 किलो टमाटर की कोई डायरेक्शन तो नहीं होंगी ना कि टमाटर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे, नहीं ना। तो सिर्फ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? मैग्नीट्यूड है। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਫॉर एग्जांपल डिस्टेंस एंड स्पीड। फिर आ जाते वैक्टर क्वांटिटीज। वैक्टर क्वांटिटीज की होणगियां ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल सर जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक्सलरेशन, फोर्स, फोर्स ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਚ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ फोर्स ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन एंड फोर्स। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਕੰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ WhatsApp ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਨਿਊ ਚੈਨਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਰ 90% ਸਕੂਲਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਗੇ, 90% ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰੋ ਦਿਸ ਜੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ A ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ मतलब की कहते एरो बना दो। जे तुसीं सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना है तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ की कर दो? डंडी मार दो, सिंपल आले दुआले। ठीक है, ये समझ आया तुहानूं सारिआं नूं? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਲ ਵੈਕਟਰ। ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
0 रहेगा। सिंपल। कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ 0 ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ दोनों की रहे अपना सेम रहे, दोनों की रहे अपना सेम रहे, उदों आपां की बोलांगे आपां इक्वल वेक्टर्स। यानी कि दोनों का फेस इसे डायरेक्शन च है, यानी कि डायरेक्शन सेम, दोनों का मैगनीट्यूड भी की रहे सेम रहे, यानी कि लेंथा सेम रहे। तो आपां की बोल सकते जो ए वैक्टर अपना बराबर होवे अपना बी वैक्टर दे, ते ए वैक्टर का मैगनीट्यूड बराबर होवे बी वैक्टर दे मैगनीट्यूड दे। थर्ड आंदा अपना ऑपोजिट वैक्टर। थर्ड टाइप ऑफ वैक्टर है ऑपोजिट वैक्टर। जदों किसी दो वैक्टरां दा मैगनीट्यूड तो अपना सेम रहे, मैगनीट्यूड अपना सेम रहे, पर डायरेक्शन की रहे ऑपोजिट रहे। मैगनीट्यूड अपना सेम रहेगा बट डायरेक्शन की रहेगी अपनी अलग अलग रहेगी। हुण तुहाडे सामने है, दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ सेम का मतलब मैगनीट्यूड सेम है, पर ए वैक्टर इस साइड है, बी वैक्टर उस साइड है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस जो होवे। तो कोई भी इहो जिहा वैक्टर जिहदा डायरेक्शन ऑपोजिट रहे ते जिहड़ा अपनी मैगनीट्यूड है वो तो अपना सेम ही रहेगा। तो मैं ये बोल सकता जिहड़ा ए वैक्टर है वो बी वैक्टर के नैगेटिव के बराबर है, जिहड़ा ए वैक्टर है वो बी वैक्टर के नैगेटिव के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर जी मैगनीट्यूड तो सेम है ए ते बी दा, पर बी वैक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन च है। नेगेटिव क्यों आ गया? मान लो आज सारी साइड पॉजिटिव है, बी वेक्टर इस पास से है, उधर पॉजिटिव है तो इधर की रहेगा नेगेटिव रहेगा। जे ऑपोजिट शो करने लिए मैं इत्थे की यूज कर लिया, माइनस यूज कर लिया, ता करके ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर पर नेगेटिव। नेगेटिव साइन इत्थे की बोल रहे हैं कि जेड़ा बी वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन च है। फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसी भी एक प्लेन दे विच, किसी भी एक प्लेन दे विच जिन्ने भी वैक्टर्स तुर रहे ने, जिन्ने भी वैक्टर्स है किसी भी एक प्लेन दे विच, इन्हां सारे वैक्टरां नूं की बोलांगे आपां कोप्लेनर वैक्टर बोलांगे। को मतलब हुंदा है, वर्ड को दा मतलब हुंदा है सेम, को दा मतलब हुंदा है सेम, एंड प्लेनर दा मतलब हो गया एक प्लेन दे विच जिन्ने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्टर्स ने, एक सेम प्लेन है, प्लेन सेम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी सारे वैक्टर्स ने, इन्हां सारे वैक्टर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਵੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰ। को इनिशियल वैक्टर की होएगा, दोबारा तो वर्ड को दा मतलब हो गया सेम, इनिशियल का मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सारे वैक्टर्स जदों कुछ अलग अलग वैक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट की रहे सेम रहे। मान लो ए वैक्टर है, ए बी वैक्टर है, ए सी वैक्टर है, ए डी वैक्टर है, आ ई वैक्टर है, पर इन्हां सारियां दा जिहड़ा स्टार्टिंग पॉइंट की है सेम है। इन्हां सारे अलग अलग वैक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट की है सेम है, तो ये सारे की होंगे कोप्लेनर वैक्टर, को इनिशियल वैक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्टर आंदा है लोकलाइज्ड वैक्टर। जदों देखो लोकलाइज्ड वैक्टर आए, मान लो तुसीं सारे जने अपनी क्लास विच बैठे हो, तुसीं सारे जने अपनी क्लास बैठे हो, तो मैं तुहाडी सीट फिक्स करदा कि तू पहले बेंच ते ही बैठना है, तुसी आके पहले बेंच ते ही बहना रोज, तो मैं तुहाडी की करता लॉक। लोकलाइज दे विच लॉक का मतलब की है किसी चीज़ नूं लॉक कर देना, किसी चीज़ का पॉइंट एक फिक्स कर देना कि आ वाला वैक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आ ही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इस ए वैक्टर का
ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨॉन लोकलाइज्ड, ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਆਏਗਾ नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर की हो गया जिहदा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, जिहदा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, यानी कि तुहाडी मर्जी है, तुसी कित्थे मर्जी जाके बैठ जाओ, यानी कि इस ए वैक्टर की मर्जी है, ये कित्थों मर्जी स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ਇਹਦਾ पॉइंट फिक्स नहीं है, कित्थों मर्जी पिछों अगों किधरों मर्जी स्टार्ट हो सकता है। तो उन्हां टाइप के वैक्टर्स नूं की बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वैक्टर्स। की बोलांगे नॉन लोकलाइज्ड वैक्टर। नेक्स्ट आंदा है सब तो इंपॉर्टेंट वैक्टर जो कि है यूनिट वैक्टर, जो कि है तुहाडा यूनिट वैक्टर, जो सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वैक्टर की हुंदा है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਰਹੇਗਾ। यूनिट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, यानी कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ डायरेक्शन दे रहा है। इस टाइप के वैक्टर नूं की बोलांगे यूनिट वैक्टर, जिन्हों आपां कैप नाल शो करते हैं, ए दे उत्ते आ कैप, इस टाइप तो एक कैप इहनूं बोलदे कैप, यानी कि इहने इहदा मैगनीट्यूड तो 1 है, इस ए वैक्टर दा मैगनीट्यूड तो 1 है, पर ये आपां नूं की प्रोवाइड कर रहा है, कैप आपां नूं की प्रोवाइड करदा गा, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपां ने 8 तरह के वैक्टर्स पढ़े। जीरो वैक्टर जिहदा मैगनीट्यूड 0 है, इक्वल वैक्टर जिहदा मैगनीट्यूड डायरेक्शन दोनों इक्वल है तो सेम है, ऑपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब इक्को ही प्लेन विच सारे वेक्टर्स, को इनिशियल जिहदा इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, लोकलाइज जिहदे विच ओहदा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है यानी कि लॉक हो गया। 7th नॉन लोकलाइज्ड जिहदा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है कित्थे भी जाके। 8th यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की हुंदा है इहो जिहा कोई वेक्टर जिहदा मैग्नीट्यूड तां 1 है, जिहदा मैग्नीट्यूड 1 है पर ओहदे कोल कैप नाम की चीज़ है, यानी कि वो आपां नूं की प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी वैक्टर की डायरेक्शन नूं प्रोवाइड कर रहे। हुण आपां चलदे अपना नेक्स्ट टॉपिक करनी। नेक्स्ट टॉपिक आंदा अपने कोल रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास वास्ते। आए मान लो यार जे ये नहीं समझ आया ना, क्लास 11th की अगे की सारी डेरीवेशनां, अगे दे 12वीं दे विच फिजिक्स बहुत औखी लगू, ईवन मैथ वालियां नूं भी मैं बोल रहा, वैक्टर्स नाम का चैप्टर है +2 विच। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ 12ਵੀਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਇੰਪॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक नहीं कर रहे, जे ये नहीं समझ आया भुल जाओ। मान लो फोर्स है, आ फोर्स का ग्राफ तुहाडे सामने है, ठीक है। मैं तुहानूं आखां ये फोर्स का ग्राफ, ये तो हुंदी है अपनी एक्स एक्सिस, ये हुंदी है तुहाडी वाई एक्सिस, मैं तुहानूं आखां फोर्स और एक आए दिता होया, मैनूं ये ग्राफ पढ़ के दिखा दो, तो नहीं पढ़ पाओगे। इस ग्राफ नूं ना आपां डिवाइड कर लैंदे आ, इस ग्राफ नूं आपां डिवाइड कर लैंदे एक्स एक्सिस के हिसाब नाल भी ते वाई एक्सिस के हिसाब नाल भी, कि इहदा एक्स एक्सिस तो कितना डिस्टेंस है, इहदा वाई एक्सिस तो भी कितना डिस्टेंस है। कदे भी ना रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स लई, रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स लई तुहानूं ना एंगल गिवन होएगा, तुहानूं एंगल गिवन होएगा जो कि थीटा रहेगा हमेशा। तुहानूं रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स समझण लई हमेशा एक गल गिवन होएगी जो कि है एंगल, एंगल दा गिवन होएगा ही होएगा। हुण इस फोर्स नूं सब तो पहले आपां एक्स एक्सिस के हिसाब नाल पढ़ांगे कि एक्स एक्सिस तो कितना दूर है। एक गल बन लो, पूरी उम्र याद कर लियो, मूँह जवानी रट लो, जिथे एंगल थीटा मिल गया ना, जिथे एंगल थीटा मिल गया तो जिहदा कंपोनेंट बनाना है, आपां कंपोनेंट कादे बना रहे हैं, एफ दे। एफ की है फोर्स, जिहदा कंपोनेंट बनाना है, तो जिथे तुहानूं एंगल थीटा दिस गया चुप करके उधरला
चुप करके इस कंपोनेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ cos ਥੀਟਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। मतलब सर जी इस ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਥੀਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ x ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ cos ਥੀਟਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। मतलब ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੀਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ sin ਥੀਟਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਖਤਮ। ਸਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ cos ਬੋਲਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ sin ਬੋਲਤਾ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ f ਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ cos ਮੂਰੇ f ਲਗਾ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ sin ਮੂਰੇ f ਲਗਾ ਦਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਖਤਮ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ मान लो टॉर्क है, टॉर्क ठीक है, ग्राफ है। थीटा लग गया इत्थे, थीटा लग गया इत्थे, ए लाइन दे नाल थीटा लग गया। चुप करके इहनूं टॉर्क cos थीटा बोलते हैं। चुप करके इहनूं टॉर्क cos थीटा बोलते हैं। हुण इहदे नाल थीटा तां लग्गिया नहीं सर जी, सानूं पता है इहदे नाल चुप करके टॉर्क sin थीटा लग जाएगा। कंपोनेंट्स इन्ना सौखे, खेड खत्म। ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ cos ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ sin ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ sin ਤੇ cos ਦੇ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ sin ਤੇ cos ਦੇ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾਅ ਤੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਆਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ क्रॉस प्रोडक्ट। किसी भी वैक्टर की डॉट ते क्रॉस प्रोडक्ट की हुंदा है। मान लो सब तो पहले डॉट प्रोडक्ट की हुंदा है, ये आपां नूं आए दसदा है कि दोनों वैक्टर्स, कोई भी दो वैक्टर्स एक डायरेक्शन विच किवें फोर्स लगा रहे हैं, या एक डायरेक्शन विच किवें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फोर्स नूं। किसी डायरेक्शन विच दोनों वैक्टर्स, किसी डायरेक्शन विच दोनों वैक्टर्स किवें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं फोर्स रिलेटेड। डॉट प्रोडक्ट नूं आपां ऐ लिखांगे ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर, यानी कि दो अलग वैक्टर्स एक डायरेक्शन विच किवें एक दूजे नूं कंट्रीब्यूट कर रहे, कि एक दूजे की मदद कर रहे, कि एक दूजे नूं वो कर रहे हैं। समझ गए? मान लो मैं सूटकेस खिंचना है, एक टैची खिंचनी है, मैं उन्होंने खिंचूंगा तो एक ए वैक्टर लग रहा है, एक बी वैक्टर लग रहा है, तो दोनों वैक्टर्स किवें उस फोर्स के उत्ते काम कर रहे, किवें उस सूटकेस ते काम कर रहे, इहनूं बोलांगे डॉट प्रोडक्ट। सिंपल भाषा विच दो वैक्टर्स एक डायरेक्शन विच किवें फोर्स लगा रहे हैं, दोनों वैक्टर्स विच किहड़ी फोर्स लग रही है, एक दूसरे की फोर्स किवें लग रही है, उस चीज़ नूं बोलदे डॉट प्रोडक्ट, जिहनूं आपां ए डॉट बी नाल शो करदे हां। ए डॉट बी नूं सॉल्व करन लई आपां लिखदे हां ए बी cos थीटा। सर जी cos थीटा कित्थों आ गया? कदे भी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करनी है तो आई नहीं कि मल्टीप्लाई च मान लो डॉट का, इस डॉट नूं हटाने लिए आपां नूं ए बी cos थीटा लिखना पैना है। ये डॉट हटेगा तो अपने कोल cos थीटा आ जांदा है, ये डॉट हटेगा तो अपने कोल की आ जांदा है cos थीटा आ जांदा है। दूजी गल, डॉट प्रोडक्ट तो जिहड़ी क्वांटिटी बन के आती है, जिहड़ी क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट तो बन के आती है वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर रहेगी, वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल वर्क, यानी कि W, वर्क का फॉर्मूला हुंदा है F डॉट S, यानी कि हुण डॉट हटेगा तो वर्क का फाइनल फॉर्मूला आ रहा है F S cos थीटा। वर्क का फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है F S cos थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने लिए आपां नूं डॉट हटाते सर cos थीटा आ जाता है। ठीक है, फिर आती क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दसदी है कि किसी भी दो वैक्टर्स दे विच जिहड़ा टर्निंग इफेक्ट वो कितना लग रहा है।
या फिर रोटेटिंग इफेक्ट कितना लग रहा है, या फिर अपना रोटेटिंग इफेक्ट कितना लग रहा है। ठीक है, जिन्हों आप शो करांगे ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी नहीं है, ए क्रॉस बी है। एनू भी सर जी आई सॉल्व करने के ए बी कॉस थीटा तो फिर इन्होंने दोनों च फर्क की रह गया जी, जे ए नाल भी कॉस आ जाएगा सॉल्व करके तो देखो ए की अपनी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा शो होंगी है ए बी साइन थीटा तो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की होंगी है किसी डायरेक्शन में दोनों वैक्टर्स किवें फोर्स नु कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ते क्रॉस प्रोडक्ट की होंदा है टर्निंग इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट, किसी भी चीज नु कितना टर्न कर रहे हैं, कितना रोटेट कर रहे हैं। अपने दरवाजा दरवाजे ਨੂੰ खोलते हो तो टर्निंग इफेक्ट ही लेंदे, एक एक्सिस के आले दुआले कोई चीज घूमती है, कोई चीज एक्सिस के आले दुआले घूम रही है तो उस चीज ਨੂੰ घूमन ਨੂੰ की बोलांगे टर्निंग इफेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दसदे कितना टर्निंग इफेक्ट है। ए क्रॉस बी ਨੂੰ सॉल्व करने लिए ਆਪਾਂ ए बी sin थीटा लिखते हैं। इस चीज तो बन के जो क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट तो बन के आती है वो क्वांटिटी ज्यादातर केसिस च की रहिंदी है अपनी वैक्टर क्वांटिटी रहिंदी है, ज्यादातर केसिस च की रहिंदी है अपनी वैक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टॉर्क, टॉर्क हुंदा है फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है तुहाडा टॉर्क। ठीक है जी, समझ आया डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हुण आपां चलदे अपने नैक्सट टॉपिक करनी। नैक्सट टॉपिक अपने को आउंदा ट्रायंगुलर लॉ, जो कि तुहाडे पेपर विच डायरैक्टली 5 मार्क्स विच पूछा जाता है। जे ट्रायंगुलर लॉ नहीं पूछते तो पैरेललोग्राम लॉ पूछ लेंदे, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इन्हां दोनों नूं स्टडी करन तो पहला आपां समझांगे एक वैक्टर नूं। मान लो तुहाडा एक ए वैक्टर है, तो ए वैक्टर विच दो चीज़ां ने, जिहड़ा ए एरो है इस एरो नूं बोलदे वैक्टर दा हेड यानी कि सिर, इस एरो ने की बोलांगे हेड, एंड जिहड़ा इस आहा एंडिंग पॉइंट है इनू बोलते टेल, इनू की बोलते टेल। तो ट्रायंगुलर लॉ की बोलता है, ट्रायंगुलर लॉ की बोलता है कि किसी ए वेक्टर, मान लो कोई ए वेक्टर है, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो। मान लो कोई ए वेक्टर है, ओनू मैं बी वैक्टर की टेल नाल जोड़ता, ओनू मैं बी वैक्टर की टेल नाल जोड़ता। हुण तुहाडे सब दे अकॉर्डिंग जिहड़ा थर्ड वैक्टर है वो उनदी जिहड़ा हेड है वो इस डायरैक्शन च होना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि इहदा हेड आ सी, फिर इहदा हेड मतलब इत्थों आपां टेल ज्वाइन कीती तां इहदा हेड इत्थे जुड़ना चाहिए, पर जिहड़े इहदी थर्ड वैक्टर है उनदा हेड इत्थे जुड़ेगा। तो जिहड़ा आ थर्ड वैक्टर है ये अपना रिजल्टेंट वैक्टर कहलांदा है, यानी कि किसी भी जदों ए वैक्टर दी मैं हेड नूं ज्वाइन कर रहा बी वैक्टर दी टेल नाल, तो जिहड़ी एक ट्रायंगल दे विच जिहड़ी थर्ड साइड बनेगी वो इन्हां दोनों ट्रायंगल्स दा रिजल्टेंट वैक्टर अखवाएगा। रिजल्टेंट वैक्टर की हुंदा है दो वैक्टर्स दे, जिहड़ा आपां नूं दो वैक्टर्स दे सम बारे दस्से। क्लीयर? जो ए वैक्टर के हेड नूं मैं बी वैक्टर की टेल नाल जोड़ा तो जिहड़ी तीजी साइड है वो की एक्ट करेगी एज अ रिजल्टेंट वैक्टर एक्ट करने वाली है। हुण सब तो पहला तो बई इनू सॉल्व करांगे आपां। सॉल्व करन लई आपां इत्थे कंस्ट्रक्शन करांगे। कंस्ट्रक्शन की करांगे, एक आपां परपेंडिकुलर खिंचता, ए की एक परपेंडिकुलर, ए की अपना एक परपेंडिकुलर। तो हुण तुसीं सारे जने देख सकते हो, पॉइंट्स नूं नेम दे दो। मान लो आ तुहाडा ओ पॉइंट है, ये तुहाडा ए पी पॉइंट है, ये तुहाडा क्यू पॉइंट है, तो ये तुहाडा आर पॉइंट है। ठीक है हुण आपां की करना है, चेक करो पी क्यू आर ट्रायंगल च, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सब तो पहला मैंने साइन थीटा दस दो पी क्यू आर ट्रायंगल दे विच, ते कॉस थीटा दस दो। मैथ वालियां नूं तां आंदा हो, बायो वालियां नूं मैं दस देना। साइन थीटा की हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जेकर आप परपेंडिकुलर की गल करिए तो परपेंडिकुलर अपना क्यू आर ते हाइपोटेन्यूज की अपना इस पी क्यू आर ट्रायंगल विच हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर दे सामने वाली साइड जो कि है तुहाडी पी क्यू। ते कॉस थीटा की हुंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की है तुहाडा पी आर, हाइपोटेन्यूज है अपना पी क्यू। ठीक है हुण इत्थों आपां क्यू आर की वैल्यू कढ लईए तो क्यू आर कितना आ रहा है साइन थीटा इंटू पी क्यू।
क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई sin थीटा इंटू पी क्यू, इधर डिवाइड च उधर जाके मल्टीप्लाई च, यानी कि पी आर की वैल्यू आ रही है cos थीटा पी क्यू। ठीक है, ठीक है। हुण की करना है, हुण तुसी गौर करना है इस पूरे वड्डे ट्रायंगल दे विच, इस पूरे वड्डे ट्रायंगल विच मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा जो कि आएगी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे वड्डे ट्रायंगल दे विच आ तां एक्ट करेगा परपेंडिकुलर, आ सारा बन जाएगा बेस ते आ सारा की बन जाएगा अपना हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की अपना ओ क्यू, हाइपोटेन्यूस की है ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू द स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर द स्क्वायर यानी कि क्यू आर द स्क्वायर प्लस यानी कि बेस द स्क्वायर। बेस की चीज़ों तो बनया हुआ है, एक तो ओपी एक पी आर। तो मैं मतलब देखो बेस वैसे तो पूरा ओ आर है ना, पर मैंने दो पार्ट्स लिख दा ओपी प्लस पी आर, मैंने दो पार्ट्स लिख दा ओपी प्लस पी आर द होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतने तक क्लीयर होया। हुण की करना है, ओ क्यू की है तुहाडा, ओ क्यू है तुहाडा रिजल्टेंट वेक्टर, ओ क्यू की है तुहाडा रिजल्टेंट वेक्टर क्यू आर, क्यू आर है मेरा बी वेक्टर, क्यू आर है अपना बी वेक्टर, क्यू आर तो बी वेक्टर है ना, देखो मैं लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, क्यू आर अपना बी वेक्टर नहीं है, क्यू आर अपना परपेंडिकुलर है, पर अपने कोल क्यू आर की वैल्यू इत्थे पई है, क्यू आर की वैल्यू इत्थे पई है जो कि साइन थीटा पी क्यू। पी क्यू की है मेरा, पी क्यू है मेरा बी वेक्टर, पी क्यू की है मेरा बी वेक्टर इन द पूरे द स्क्वायर। ओपी, ओपी है मेरा ए वेक्टर प्लस आए करिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो आप आए लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ब्रैकेट खोलता ए प्लस बी द होल स्क्वायर और वो कादे बराबर हुंदा है ए स्क्वायर प्लस 2ab, सबनों आंदा है वो। तो मैं इत्थे ए वेक्टर द स्क्वायर लिखता, पी आर की है मेरा आ पिया, यानी कि cos थीटा पी क्यू सीगा मेरा बी वेक्टर, पी क्यू सीगा मेरा बी वेक्टर इन द पूरे द स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की अपना ए वेक्टर ही है, ए की अपना ओपी अपना ए वेक्टर ही है, तो बी की है मेरा cos थीटा पी क्यू, यानी कि 2a cos थीटा बी वेक्टर। क्लियर, क्लियर। हुण आपां देखो रिजल्टेंट वेक्टर द स्क्वायर बराबर है, इनू खोल लो तो आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पी क्यू की है मेरा, पी क्यू की है मेरा बी वेक्टर द स्क्वायर प्लस ए वेक्टर द स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ नहीं, बस मैंने आह सारे स्क्वेयर्स ओपन किए ने, होर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है। हुण इहनूं अगे इत्थे सॉल्व कर रहा मैं। साइन स्क्वायर थीटा ते कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1, या फिर इत्थे बी स्क्वायर कॉमन ले लो। पहला आपां की कीता बी वेक्टर दा स्क्वायर इन्हां दोनों च कॉमन ले लिया, इन्हां दोनों विच मैं बी वेक्टर दा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया प्लस ए वेक्टर दा स्क्वायर बच गया प्लस 2ab cos थीटा बच गया। हुण साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुंदा 1, ठीक है, प्लस ए वेक्टर दा स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, हुण ये सारा कादे बराबर सी रिजल्टेंट वेक्टर दे स्क्वायर दे। इधर स्क्वायर है तो इधर आके की हो जाएगा अनरूट, इधर स्क्वायर है तो इधर आके अनरूट, यानी कि बी वेक्टर द स्क्वायर प्लस ए वेक्टर द स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का अपने को फॉर्मूला की आ रहेगा ए वेक्टर द स्क्वायर प्लस बी वेक्टर द स्क्वायर इंटू 2ab cos थीटा। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ते दोबारा निगाह मारो सारे जने। सब तो पहला आपां कीता किसी भी ए वेक्टर दी जे टेल नूं, सो किसी भी ए वेक्टर दे हैड नूं जे मैं दूसरे वेक्टर दी टेल नाल जोड़ रहा, तो जिहड़ी तीजी साइड एक ट्रायंगल दे विच होएगी वो की एक्ट करेगी, वो एक्ट करेगी एज अ
रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आप सब तो पहला फिर मैंने इस ट्राइंगल पी क्यू आर विच साइन थीटा दे कॉस थीटा कढ़िया, फिर मैंने इस पूरे वड्डे ट्राइंगल विच पाइथागोरस थ्योरम यूज की। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने तो बाद इत्थों ही चक चक के मैं वैल्यूज पुट करके अपना रिजल्टेंट वेक्टर की फाइनल वैल्यू आ रही है बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। क्लीयर, समझ आ गया भी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨੀ। नेक्स्ट टॉपिक अपना पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगुलर लॉ दोनों ही इक्को नाल देने, मतलब डेरिवेशन तो इक्को नाल दी दिखेगी, बट दोनों ही डायरेक्टली 5 मार्क्स दे विच आ जाते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ की बोलता है, जदों मान लो कोई ए वैक्टर है जिहड़ा इस डायरेक्शन च, ट्रायंगुलर लॉ च की सीगा कि ए वैक्टर दी तां टेल हैड दे नाल बी वैक्टर दी टेल जुड़ेगी, ए वैक्टर दे हेड नाल बी वैक्टर दी टेल जुड़ेगी, पर इत्थे उलट है, इत्थे ए वैक्टर दे हेड दे नाल ही बी वैक्टर दा सॉरी ए वैक्टर दी टेल दे नाल ही बी वैक्टर दी की जुड़ेगी, टेल जुड़ेगी। उत्थे ट्रायंगुलर लॉ च की सीगा ए वैक्टर दे हेड दे नाल बी वैक्टर दी टेल जुड़ रही सी, इत्थे की हो रहा है ए वैक्टर दे हेड दे ए वैक्टर दी टेल दे नाल ही बी वैक्टर दी टेल जुड़ रही है। हुण देखो कि तुहानूं ये पैरेललोग्राम लग रहा है, नहीं तो इन्हां को पैरेललोग्राम ड्रॉ करांगे, पहला एक तरह तो इधर नूं जोड़ता फिर इहनूं इत्थे जोड़ता ताकि ये की लगे पैरेललोग्राम लगे। ठीक है, ठीक है। तो हुण इत्थे की होएगा ए वैक्टर दी टेल नाल बी वैक्टर दी टेल जुड़ रही है, तो इन्हूं मैं कुछ पैरेललोग्राम दी शेप देती। तो पैरेललोग्राम लॉ की बोलते हैं, तो जिहड़ी डायगनल हुंदी है ना, जिहड़ी अपनी मेन डायगनल हुंदी है, जिहड़ी मेन डायगनल वो की रहेगी अपनी रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। पैरेललोग्राम लॉ दे विच की हो रहा है, ए वैक्टर दे टेल नाल बी वैक्टर दी टेल जुड़ती है, तो जिहड़ी अपनी पैरेललोग्राम दी डायगनल रहिंदी है, मेन डायगनल रहेगी, वो एक्ट करेगी एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ च की सी थर्ड साइड एक्ट करती सी एज अ रिजल्टेंट वेक्टर, पर इत्थे की करेगी डायगनल एक्ट करेगी एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। दोबारा कंस्ट्रक्शन होएगी, कंस्ट्रक्शन की होएगी, इत्थे आपां एक परपेंडिकुलर सुट्टांगे, ठीक है, पॉइंट्स नु नाम दे दो ओ पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है। आ वाला एंगल तुहाडा थीटा है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, आ वाला एंगल तुहाडा थीटा है ते आ वाला एंगल तुहाडा एल्फा है। क्लीयर। हुण सब तो पहले आपां डिस्कस करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है। दोबारा तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा कढ़ लो भाई। साइन थीटा हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है अपनी, हाइपोटेन्यूस अपनी पी क्यू। इधर कॉस थीटा कढ़ लो जो कि हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हुण आपां इत्थों पी क्यू दी वैल्यू कड्ढीए जो कि आ रही है साइन थीटा क्यू आर, ठीक है, ठीक है। ते इत्थों दे आपां जे कढना होवे तां पी आर दी वैल्यू कड्ढीए तां वो आ रही है अपनी कॉस थीटा इंटू पी क्यू। इत्थे भी तुसीं इदां ही करो, इत्थे भी आपां की करदे हां, इत्थे भी आपां क्यू आर दी वैल्यू कढदे हां जो कि आ रही है साइन थीटा पी क्यू। हुण आपां की करांगे, हुण आपां की करांगे, इस पूरे वड्डे ट्रायंगल ओ ओ क्यू ते आर दे उत्ते इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इस पूरे वड्डे ट्रायंगल ओ क्यू आर विच गौर करो, इत्थे आपां की अप्लाई करांगे पाइथागोरस थ्योरम जो कि हुंदी है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की अपना ओ क्यू यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर दा स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर दा स्क्वायर, पी की अपना पी 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 अपना क्यू आर दा स्क्वायर प्लस बेस, बेस दोबारा आप ही तोड़िए ओपी प्लस पी आर दा
होल स्क्वायर। हुण बस अप्लाई कर दो बई, बस लिख दो टर्म्स। रिजल्टेंट वैक्टर नूं तां आर स्क्वायर ही लिखिया रहन दो। क्यू आर है, क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू दी हुई है साइन थीटा, साइन थीटा पी क्यू। पी क्यू की है मेरा, आ देखो पैरलोग्राम दे विच ओपोजिट साइड्स पैरलर ते इक्वल हुंदी है, यानी कि जिन्ना अपना आवल है, जिन्नी लेंथ हिंदी है उन्नी लेंथ ही ए रहेगी, यानी कि पी क्यू भी की रहेगा अपना बी वैक्टर ही रहेगा। तो इन द होल स्क्वायर ओपी, ओपी तो मेरा ए वैक्टर है प्लस पी आर। दोबारा तो ए प्लस बी दे होल स्क्वायर नूं खोलांगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आर की वैल्यू मैं इत्थों ले ली जो कि है कॉस थीटा पी क्यू द होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ओपी यानी कि ए वेक्टर इंटू पी आर यानी कि पी क्यू कॉस थीटा। इनू हुण आपां इत्थे सॉल्व करिए। रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर बराबर आ रहा है साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बी वेक्टर का स्क्वायर द थीटा, सॉरी बी वेक्टर का स्क्वायर, हाँ ठीक है। फिर आ रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस इनू सॉल्व करो तो कॉस थीटा ते बी वेक्टर का स्क्वायर, कॉस थीटा का भी स्क्वायर आ गया प्लस 2ab बी वेक्टर प्लस 2a ते बी वैक्टर ते कॉस थीटा। हुण दोबारा बई इन्हां दोनों च बी स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देना कि बी वैक्टर आपां कॉमन ले लिया, बी वैक्टर दा स्क्वायर कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। हुण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हुंदा 1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल, ठीक है। तो हुण की करना है, रिजल्टेंट वैक्टर का इधर स्क्वायर है उधर जाके की हो जाएगा अनरूट, तो रिजल्टेंट वैक्टर का फाइनल फॉर्मूला आ रहा है ए वैक्टर का स्क्वायर प्लस बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वैक्टर का ते बी वैक्टर ते कॉस थीटा। तो अपने को रिजल्टेंट वैक्टर का फाइनल फॉर्मूला सेम आ रहा है दोनों ही लॉज विच। ये सीगा अपना पैरेललोग्राम लॉ। हुण आपां चलदे अपने नैक्सट टॉपिक करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर च आंदा ही आंदा है सितंबर एग्जाम च। तां नैक्सट टॉपिक है अपना प्रोजैक्टाइल मोशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बच्चों को समझ घट आउंदा है बट मैं तुहानूं अपनी साइड तो 100% दूंगा। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट नूं इदां सुट रहा, इदां सुट रहा, तो प्रोजैक्टाइल मोशन की हुंदा है वैन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नूं तुसीं इदां सुटता ते इहनूं मैं ग्रेविटी दे इफेक्ट दे अंडर डिगन दवां। किसी भी चीज़ नूं तुसीं मान लो सुटता हॉरिजॉन्टली, बट हॉरिजॉन्टली when any object is thrown horizontally and it makes an angle with x-axis or y-axis and is allowed to fall under the free fall or fall under the effect of gravity is known as projectile motion। डेफिनेशन दोबारा बोल देना, when any object, लिख लो सारे जने, when any object is thrown horizontally making an angle with x-axis or y-axis and is allowed to fall under the effect of gravity is known as projectile motion। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट जो मैं इदा सुट रहा ते हुणे धरती इहनूं थल्ले खिच रही है ना, सिटिया की है हॉरिजॉन्टली, इहनूं मैं किसी कुछ एंगल बना के इदा सुटिया ते जदों आए जाके नीचे डिग गया, इस चीज नूं ही प्रोजैक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिन्हों मैं आए सुटिया, कोई ऑब्जेक्ट है जिन्हों मैं आए सुटिया, तो एक ही अपना प्रोजैक्टाइल मोशन, क्यों, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट में आ ऑब्जेक्ट है इन्हू मैं सुटिया तो इत्थे जाके डिग गया, तो इन्हें एक्स एक्सिस नाल कुछ एंगल बनाया जो कि थीटा, इन्हें एक्स एक्सिस नाल कुछ एंगल बनाया जो कि है
थीटा। हुण एक तो होएगा इहदा मैक्सिमम पॉइंट, एक तो होएगा इहदा मैक्सिमम पॉइंट, एक होएगा मैक्सिमम पॉइंट, एक होएगा इनदा आह किन्ना दूर इत्थों सुट्टिया सी ना इस पॉइंट तो ओ पॉइंट तो सुट्टिया सी ते इत्थे आके डिग्गिया, इत्थे आके डिग्गिया यानी कि बी पॉइंट ते आके डिग्गिया तो ओ तो बी तक दा डिस्टेंस, ओ तो बी तक दा डिस्टेंस की होएगा अपना रेंज होएगा, ओ तो बी तक दा डिस्टेंस की रहेगा रेंज रहेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं जेड़ा ओ बी है वो की अपना रेंज है ते जेड़ा आह ए पॉइंट है, ए पॉइंट ए की अपना मैक्सिमम हाइट, ए की अपनी मैक्सिमम हाइट। सुन लो इन्हों कैलकुलेट करने इन्हों के फॉर्मूलिया कि रेंज का फॉर्मूला किवें कैलकुलेट करना मैक्सिमम हाइट का। हुण मान लो एक तो होएगा तुहाडा आ ओ तो ए तक का टाइम, एक होएगा तुहाडा ओ तो ए तक का टाइम, इहनूं आपां बोलांगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ तो ए तक टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ तो ए तक टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ओनी देर तो ऑब्जेक्ट ऊपर नु जा रहे ते ए तो बी, ए तो बी अपना रहेगा टाइम ऑफ डीसेंट, इनू आप टाइम ऑफ एसेंट बोलांगे, पूरे नु आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलांगे, पूरे नु आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलांगे। ता कितना टाइम ऑब्जेक्ट ओ तो ए यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ओनू बोलांगे टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब है ऊपर नु जा रहे, ए तो बी ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो गया उस चीज नु बोलांगे टाइम ऑफ डीसेंट। क्लियर? तो जे मैं दोनों नु ऐड कर दूंगा तो मेरे को आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक गल याद रखियो टाइम ऑफ एसेंट जेड़ा है, टाइम ऑफ एसेंट जेड़ा है वो हमेशा इक्वल होएगा टाइम ऑफ डीसेंट दे। यानी कि जे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जान च 2 सेकंड ले रहा है तो 2 सेकंड च ऑब्जेक्ट नीचे भी आ जाएगा। समझे कि जे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जान च 2 सेकंड ले रहा है तो नीचे आने च भी कितना टाइम लगेगा 2 सेकंड लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट हमेशा बराबर रहता टाइम ऑफ डीसेंट दे। हुण सब तो पहला आप कैलकुलेट करांगे टाइम ऑफ फ्लाइट नू, सब तो पहला आप कैलकुलेट करांगे टाइम ऑफ फ्लाइट नू कि वो कितना टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे कितना टाइम उन्हें इस ओ पॉइंट तो बी पॉइंट तक लेता, इनू किवें कैलकुलेट करांगे। तो देखो सब तो पहला तो कंपोनेंट्स वो एक यू वेलोसिटी नाल गया सी, कोई ऑब्जेक्ट आप इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वेलोसिटी नाल गया सी तो हुण इहदा थीटा, हुण इहदा कंपोनेंट बनणगे आ वाला कंपोनेंट तो होएगा यू कॉस थीटा क्योंकि थीटा इधरले पासे ते दूर वाला कंपोनेंट रहेगा यू साइन थीटा। ठीक है ए तो है तो ठीक है इन्नी गल क्लियर है। सब तो पहला आप कैलकुलेट करना टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जिन्हों आप टी नाल शो करते हैं, जिन्हों आप टी नाल शो करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला की है T1 प्लस T2। T1 की है सर जी टाइम ऑफ एसेंट क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की हुंदा है कितना टाइम उन्हें ऊपर जान च लेता ते कितना टाइम उन्हें नीचे आन च लेता, दोनों नु ऐड करांगे तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। पर दूजी लाइन च मैंने ऐ भी बोलता कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर हुंदा टाइम ऑफ डीसेंट दे तो मैं ऐ बोल सकदा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है 2t दे। क्यों? क्योंकि दोनों ऐड करांगे, दोनों ऐड करांगे तो अपने को 2t ही आएगा। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2t। हुण आप कैलकुलेट करांगे टाइम ऑफ फ्लाइट नु। ठीक है सब तो पहले छोटी टी नु कैलकुलेट करते हैं यानी कि एक टी नु कैलकुलेट करते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस at। सारी इक्वेशन आप y के हिसाब नाल लगाती यानी कि सब कुछ आप y एक्सिस के हिसाब नाल लवांगे। हुण फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इत्थे आके रुक गया तो ओदी फाइनल वेलोसिटी की है जीरो। इनिशियल वेलोसिटी y वाला कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का की है u sin थीटा, u sin थीटा प्लस a की है g, a की अपना g। हुण देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो धरती नीचे करनी खिंच रही है तो जी की वैल्यू की आ जाएगी नेगेटिव तो टी तो आप कैलकुलेट करना है। हुण यू साइन थीटा इधर प्लस का उधर जाके नेगेटिव दा यानी कि नेगेटिव दा यू साइन थीटा इधर जी मल्टीप्लाई च इधर आके डिवाइड च तो बराबर आ गया टी दे माइनस नाल अपनी माइनस कैंसल तो अपने कोले टी का फाइनल फॉर्मूला की आ रहा है यू साइन थीटा अपॉन जी। टी का फाइनल फॉर्मूला क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी। हुण मैंने कढ़ना किसी टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर है 2 इंटू टी यानी कि मैं 2 नु मल्टीप्लाई करदा इस पूरे नाल
यानी कि u sin थीटा अपॉन जी नाल, तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फाइनल फॉर्मूला की आ रहा है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला की आ रहा है 2u sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट की सीगा कि कितना टाइम उन्हें ओ तो लेके बी तक लेता, किदे बराबर है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जिथों मैंने t इक्वल्स टू 2t की वैल्यू मिली, फिर मैंने v इक्वल्स टू u प्लस at यूज किया, जिदे विच फाइनल वेलोसिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का ग्राउंड टच कर गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का रेस्ट स्थिति आ गया। u अपना y, क्योंकि आप सारा कुछ y एक्सिस के हिसाब नाल लेते, तो y वाला कंपोनेंट सीगा u sin थीटा। हुण ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है पर धरती उन्होंने नीचे नूं खिंच रही है, तो g की वैल्यू नेगेटिव ते t इत्थे, टी की वैल्यू इत्थों कढ लई ते अपने कोल फाइनल आपां टी की वैल्यू इत्थे पुट करके टाइम ऑफ फ्लाइट दा फाइनल फार्मूला ले लिया, जो कि है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, स्क्रीन तुहानूं सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप च ज्वाइन कर लो। हुण आपां कढदे हां अपना मैक्सिमम हाइट कि इत्थे ए पॉइंट तक उन्हें कितना मतलब मैक्सिमम हाइट है कि ये ओदा मैक्सिमम पॉइंट है, इन तो ऊपर तो गया नहीं ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला वो आपां कैलकुलेट करते हैं। नैक्सट फॉर्मूला आप डिराइव करांगे इस मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कड्ढण लई आपां s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर का यूज करांगे। ठीक है, तुसीं इहदे लई आप भी यूज कर सकते हो, जे तुसीं ये नहीं यूज करना चाहते तो तुसीं v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बराबर 2as भी यूज कर सकते हो। मैं इस दे नाल डिराइव करूंगा। ठीक है, तो देखो v तो अपनी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, सारा कुछ आप y एक्सिस के हिसाब नाल लगावांगे, माइनस u y का कंपोनेंट u के हिसाब नाल है u sin थीटा, यानी कि ਇਹਦਾ स्क्वायर 2 इंटू जी। दोबारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, धरती नीचे खिंच रही है, तो g की वैल्यू नेगेटिव s, यानी कि s की अपना मैक्सिमम हाइट तो इनू h नाल शो कर दिए। हुण इनू खोलो तो माइनस u sin स्क्वायर थीटा, इधर 2g मल्टीप्लाई च इधर आके डिवाइड च, तो बराबर आ गया h दे, माइनस नाल माइनस कैंसल, तो h का फॉर्मूला क्या आ रहा है u sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आलो इन्ना सिंपल है हाइट का फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। हुण आपां करदे हां अपना रेंज नूं कड्डांगे कि ओ तो लेके बी तक दा डिस्टेंस नूं आपां रेंज कहने आ। रेंज की एक तरह तो डिस्टेंस ही है, रेंज की अपने एक तरह तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला की हुंदा है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। देखो स्पीड हुण रेंज की आप एक्स एक्सिस के हिसाब नाल लवांगे, स्पीड की है यानी कि आप एक्स वाला कंपोनेंट लवांगे, यानी कि u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अपना u cos है ना। टाइम का फॉर्मूला पिछे कढ़िया सीगा, जो कि सीगा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो हुण अपने को रेंज का फॉर्मूला आ रहा है u cos थीटा sin थीटा, u का तो स्क्वेयर है क्योंकि u नूं u नाल गुणा करोगे तो स्क्वेयर ते 2 अपॉन जी, ये रेंज आ गई। हुण देखो बई जिन्ना कोल तो है मैथ, जिन्ना कोल है मैथ, तो मैं उन्होंने दसदा ट्रिग्नोमैट्री का एक फॉर्मूला हुंदा है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर हुंदा है sin 2 थीटा दे। ये मैथ का एक ट्रिग्नोमैट्री का फॉर्मूला है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर हुंदा है sin 2 थीटा दे। हुण देखो 2 cos थीटा ते sin थीटा कादे बराबर है sin 2 थीटा दे, तो ये तो आ गया sin 2 थीटा, ये तो आ गया sin 2 थीटा, u स्क्वायर उदा ही अपॉन जी। तो अपने को रेंज का फाइनल फॉर्मूला की आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। इहदे नाल ही तुहाडा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुंदा है। अज दी वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी, ये बैकबोन सी फिजिक्स की अज दी वीडियो, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जो कि फिजिक्स की सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ां सी। आई होप सारे समझ गए होंगे एंड अटेंडेंस लगा के जानी है अपनी कमेंट्स विच। सारे नोट्स तुहानूं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगे, वो चेक कर लो एंड मिलते हैं आप एक न्यू वीडियो। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।